So, good morning, friends. We'll be starting our lecture on irrigation engineering, unit number one, which deals with the general some concepts of irrigation engineering, and then we will be moving on to water requirement of crops. The syllabus to this unit number one, necessity and importance. That is the first part is regarding the various concepts, and second part is regarding the crop water requirement that we will be discussing in our due course of time. I have given you the notes on both the units, on both the parts of this unit 1. I have posted the notes on your WhatsApp group as well as on the Google Classroom. I request you all to please go through the notes very sincerely. So, friends, this slide which deals with the irrigation. What is irrigation? So, as we know that our India, being the agriculture dependent country, we have almost we depend on agriculture. 80% of our population depends on agriculture, and for agriculture purposes, for raising the crops, we need the water. Water is one of the important parameter required in the biological development of the plants or crops, and that water supplied to the plants, crops, or for agriculture purpose is either by nature, that is with the help of the rainfall, precipitation, storms, and the another way of supplying the water to the plants or the crops is by the irrigation. That is again supplying the water to the soil, that is to the for raising the crops artificially with the helps of the by constructing the dams, canals, pipelines, etc., by various artificial means. So the definition of the irrigation is the process of artificially supplying water to the soil for raising the crops. This is the definition. Number of times it is asked in exam. Again, it will be my request to all of you to please have your notebooks, prepare a separate notebook for irrigation engineering, and regularly giving the dates and whatever you are learning, you should be able to note down, jot down. Make this habit of jotting down in your notebook. It will be definitely helpful. Don't only sit by viewing this on your mobiles or on your laptops, etc. This is the time you should more concentrate on your lectures, because unfortunately due to the corona, some lethargy is there, because almost 1 year has passed in corona and sitting yourself in your houses, in your homes. So you must be bored, but you have to self motivate yourself. Okay, this is the way. Somehow or other you have to move or push and study more, make this habit of enjoying the subject so that you will not get bored. Irrigation, as I have told you, it is an artificial supply of water to the soil, to the plants, for raising the crops, for raising the plants, etc. Now, how it is achieved? Again, it is the science or engineering. How to supply the artificial water to the plants? It will not come automatically. We have to do something for that. So, therefore, it is the science or engineering of planning and designing. Of planning and designing. Again, all these things, that is planning, designing, and constructing of a efficient, low cost, economic irrigation system to fit the natural conditions. First, we will understand what is this, and then we will bit discuss on that. How it is achieved?
by scientifically, with the help of the technical knowledge, with the help of the engineering, we have to we have to supply artificially the water to the plants and crops, is irrigation engineering. Now how it is achieved? It is achieved by economically controlling and harnessing the various natural sources of water. Which are the various natural resources of the water? They are the rivers, they are the reservoirs, they are the tanks, they are the ponds, okay, the rainfall, the runoff. All these are the natural resources of the water, sources of water. So you have to control, means you have to control the flowing water. You have to construct the dams. You have to construct the reservoirs. Dams are the structures which are constructed across the rivers. They are like the walls. After construction of the dams, the reservoirs are created, the ponds are created. After the reservoirs and dams are constructed, the canals are constructed. For carrying the water from the dam to the canal, the structures called as the headworks are constructed, which include then overall all this irrigation engineering then includes what? Study and design of works in connection with the river control, that is the construction of the dam, construction of the headwork, construction of the canal, supplying the water till the farm, till the agriculture, main canal, sub canal, minors, etc. This is one part or major part of irrigation engineering. Another part is also, as a irrigation engineer, is the drainage or rehabilitation of the waterlogged areas. Number of times what happens? That the due to the oversupply of the water to the agriculture, to the lands, the soil pores get clogged with the water, and this soil is not useful or remains useful for the agriculture development or the plants to grow, and therefore such areas are called as the waterlogged areas. We have to rehabilitate or make that waterlogged area reusable with the help of draining the water from that waterlogged areas. That is part of the irrigation engineering. And last but not the least, again there are again numerous uses of the irrigation engineering, but the basic purpose of irrigation engineering is supplying the water to the crops or agriculture, as well as drainage of the waterlogged area. And the subsidiary or the secondary uses are in due process in supplying the water to the crops or plants with the help of the canal is the generation of the hydroelectric power, है ना? अब हम और इसको थोड़ा सा विस्तार से समझ लेते हैं कि इरिगेशन इंजीनियरिंग अभी थोड़ा सा सबको समझने के लिए थोड़े हिंदी में भी डिस्कस करते हैं। अभी तक की इतना बड़ा हमने बड़ा भारी भाषण सुना मेरा आपने। तो इरिगेशन इंजीनियरिंग यानी खेतों को कृत्रिम रीत्या, आर्टिफिशियली, मीन्स नॉट नेचुरली फ्रॉम द रेन्स, यानी रेन से पानी नहीं, लेकिन आर्टिफिशियली खेतों में खेतों की पैदावार बढ़ाने के लिए, क्रॉप्स की पैदावार बढ़ाने के लिए वाटर सप्लाई करना, ये बेसिक पर्पस है इरिगेशन इंजीनियरिंग का या इरिगेशन इंजीनियर्स का। अब पानी तो ऑटोमेटिक नहीं आएगा, इसलिए पानी के जो रिसोर्सेस है कि पानी किस में अवेलेबल है। पानी एक तो बरसात से मिलता है, बरसात से जमीन पे गिरता है, प्रेसिपिटेशन और रेनफॉल creates the runoff, and that runoff, either the surface runoff, subsurface runoff, or the base flow, is stored into the rivers, is stored into the already created reservoirs or ponds, या हमें इसके ऊपर में we have to construct the dams, डैम बनाना। डैम क्या है? डैम यानी एखादे बहते हुए नदी में एखादी दीवार बांधना,
is the dam. It is the obstruction created across the river. Okay. What happens due to the obstruction created across the river? कोई भी दीवार, डैम है ना, आप सबको मालूम है, हम कोई नई बात कुछ भी नहीं पढ़ रहे वाला, सिर्फ इसको टेक्निकली कैसे समझना ये हम समझ ले रहे हैं. तो डैम इज द वॉल कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द रिवर. व्हाट डज दैट डैम डू? इट क्रिएट्स द स्टोरेज ऑफ वाटर अपस्ट्रीम पार्ट ऑफ द डैम. डैम या दीवार के जो अपस्ट्रीम पार्ट में है, नदी जिधर से बहते हुए आती है उसको अपस्ट्रीम बोलते हैं, और डैम के नीचे में नदी बहते हुए जाती है उसको डाउनस्ट्रीम बोलते हैं. तो वो अपस्ट्रीम जो पार्ट ऑफ द वॉल जो है उसमें रिजर्वायर क्रिएट होता है, तो उसमें तालाब बनता है. और ये तालाब और डैम, इसके इसमें यदि हमने एक आधा दरवाजा बनाया जिसको हेडवर्क करके बोलते हैं, और वो हेडवर्क के माध्यम से दैट वाटर इज टेकन टू द कैनाल. बड़ा कैनाल रहता है मेन कैनाल. मेन कैनाल से जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा राइट साइड में कॉर्नर में, टॉप कॉर्नर में छोटा कैनाल, छोटे कैनाल से फिर से और जी उसको छोटे छोटे कैनाल से होते हुए थे फील्ड डिस्ट्रीब्यूटरी करके बोलते हैं कि खेतों में पानी जाता है. एंड दैट वाटर इज यूज्ड फॉर द एग्रीकल्चर पर्पज आइदर. और आपके यहाँ बताया है कुछ अलग टाइप ऑफ द इरिगेशन जो हम आगे में और पढ़ने वाले, स्प्रिंकलर इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन वगैरह. ठीक है. तो दिस इज ऑल. और ये सब करना है, ये सब करना है, लेकिन ये कौन करता है? ये गवर्नमेंट करती है ना. कोई भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ योर स्टेट, मे बी महाराष्ट्र स्टेट, मे बी उत्तर प्रदेश, मे बी जम्मू एंड कश्मीर, और मे बी एनी स्टेट. तो ये स्टेट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आता है? इसके ये पैसा सब हम लोग जो टैक्स देते हैं उसमें से पैसा आता है. कोई गवर्नमेंट के पास में नोटा छापने की मशीन नहीं है. मैं क्यों कह रहा हूं ये आपको आगे के इसमें इंपॉर्टेंट समझेगा कि हमें ये सब कंस्ट्रक्ट करना है. ये डैम कंस्ट्रक्ट करना है, ये कैनाल कंस्ट्रक्ट करना है, उसके ऊपर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स आने वाले हैं वो कंस्ट्रक्ट करना है. और ये कैनाल सब ग्रेविटी से बहते हैं विद द हेल्प ऑफ द ग्रेविटी फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल, है ना. ये सब समझते जाना है धीरे धीरे, नए नए कुछ कंसेप्ट है. तो ये सब क्योंकि लोगों के टैक्स के मनी से है, तो ये हमें इकोनॉमिकल भी करना है. बहुत इंपॉर्टेंट जो पीछे में 2-3 स्लाइड पहले या 1-2 स्लाइड पहले आया था जो मैं आपको इलेबोरेट करना चाहता था, वो ये था कि ऑल दिस इज डन इकोनॉमिकली, economically and with minimum or optimum of the money, maximum people should get benefit. Okay, this is very important. This is all what I wanted to tell about irrigation engineering. मुझे लगता है ये बहुत अच्छे से आप समझ गए हैं. ठीक है, very good. Now we will move on to the next part, that is the necessity and importance of irrigation engineering. Again, whatever we are learning into this part, a one question is asked on all this. Number of times they ask if the exam is in uh, written type, then all these papers, in papers you will see the questions, as well as in my notes also. As you are all acquainted with in all my notes I give the questions in the university exams asked at the beginning of the notes. So there you will see all what we are learning and what is being asked in exam. ठीक है. तो इसलिए बार बार मैं इसलिए आपको याद दिला रहा हूं कि आप ये अच्छा कंसंट्रेट करते हुए नोट्स भी अपने साथ में कहीं तो भी शॉर्ट में लेते जाइए कुछ, क्योंकि नोट्स तो मैंने आपको डिटेल में दिया ही है, लेकिन आप खुद लिखते जाएंगे जो जो हम पढ़ रहे हैं. हिंदी में लिखिए, आपकी जो मदर टंग है मराठी में लिखिए, हिंदी लिखिए, कुछ भी. इंग्लिश में लिखा तो बहुत ही अच्छा है. अपने आप डेवलप होते जाएंगे इंग्लिश राइटिंग एंड इंग्लिश एक्सप्रेशन. ठीक है. नाउ फ्रेंड्स, विल बी मूविंग ऑन टू द नेसेसिटी एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इरिगेशन. As I have told you, India is a agro based country, agriculture country.
आवर होल इकोनॉमी, है ना, जीडीपी करके बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी, ये अभी ये कोरोना पीरियड में हमारा पूरा जीडीपी जो था, है ना, कोरोना में सब इंडस्ट्री बंद हो गई, ऑल द इंडस्ट्री प्रोडक्शन हैज ऑलमोस्ट रिड्यूस टू 50%। यानी हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो रहता है हमारे देश का एक अंक रहता है, आंकड़ा रहता है। मैं क्यों बता रहा हूँ आपको बताता हूँ। उसमें सबका कंट्रीब्यूशन रहता है कि इंडस्ट्रीज का रहता है, आईटी इंडस्ट्री का रहता है, ऑटोमोबाइल का रहता है, और सब एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का रहता है, और एग्रीकल्चर का भी रहता है, खेतों की पैदावार। तो इस बार हमारे इकोनॉमी को बचाने वाली ये एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है, क्योंकि बाकी सब कोरोना में अफेक्ट हो गए। हमारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, क्योंकि कोरोना ने सभी तरफ फैल रहा है, तो एवरीवेयर द प्रोडक्शन हैड इज रिड्यूस्ड एंड इट हैज अफेक्टेड टू आवर इकोनॉमी टू ए लार्ज एक्सटेंट, बट दैट हैज बीन सेव्ड बाय ओनली एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, क्योंकि हमारे खेतों की पैदावार इसमें कम नहीं हुई, है ना, क्योंकि कोरोना कोई खेतों को कोई ये नहीं कर सकता है। और हम हमारे काश्तकार या देश खेती वाले जो के बांधव है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। तो इसलिए इंडिया इज ए एग्रीकल्चरल कंट्री, इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एज यू ऑल नो, for the purpose of agriculture we need water, and for the water we depend on the rainfall. And we all know that rainfall is unfortunately dependent on the nature, है ना। बरसात जो है ये नेचर के ऊपर डिपेंड है, निसर्ग के ऊपर है। एक आधे बार आता है तो वो जून से लेके अक्टूबर तक के कौन से महीने में बहुत कम आता है, तो कभी ज्यादा आता है। एक आधे बार महाराष्ट्र में ज्यादा आता है, तो कहीं तो भी राजस्थान में बहुत कम आता है, या एक आधे बार महाराष्ट्र में भी विदर्भ में ज्यादा आता है तो मराठवाड़ा में कम आता है। तो कहने का मतलब वी आर डिपेंडेंट ऑन द रेनफॉल, as we being the agriculture agro based country, and the rainfall is dependent on nature. It is not uniform for the whole period, as well as its quantity also varies. So therefore what can we do now to overcome this difficulty? So therefore we can collect the water or excess water during the period of excess rainfall and then release it to the crop as and when it is needed. या हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि साल के 4 महीने जो बरसात के हैं उसमें हम बरसात का पानी जमा करके रखेंगे, और बचे हुए जो 8 या 9 महीने हैं उसमें हम बरसात का पानी यूज करेंगे। So this is the importance of the irrigation engineering. That is to store in two lines. What can we say? The importance of engineering. As the India being agro-based country, agricultural country, and the agriculture needs water, and the source of water and the sources of water are only two. One is the nature god, that is the rainfall, and second is by the irrigation engineering. So what we do, we conserve, we preserve, or we store the water which is excess in the excess rainfall period in the reservoirs, in the dams, and we release it or we use it when it is needed and when there is no natural water available. This is the importance of irrigation engineering. Now the necessity. Why the irrigation engineering or irrigation or artificial supply of water is essential or necessary? In short, it is listed down here. Less rainfall. Sometimes what happens? That certain area receives more rainfall, certain area receives less rainfall, or in certain years, है ना। एक आधे बार क्या होता है कि 2021 में अच्छी बारिश आई या 2020 में अच्छी बारिश आई तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है, खेती को भी अच्छा रहता है, डैम भी पूरे भर जाते हैं और हमें इरिगेशन के लिए पानी अवेलेबल रहता है। लेकिन
यदि 2021 में बारिश अच्छी नहीं हुई है ना, बहुत सारे इफेक्ट है, आप सबको मालूम है कि आज ग्लोबल वार्मिंग है, वो कुछ और बाकी भी कॉजेस है, और नेचर है ऊपर से, तो उसके कारण लेस रेनफॉल हो सकता है, कम बरसात हो सकती है। तो 2020 में जो जमा किया हुआ पानी है, दैट कैन बी यूज्ड इन 2021। सो फर्स्ट कॉज इज लेस रेनफॉल, नेसेसिटी ऑफ इरिगेशन। Second is non-uniform rainfall. Certain part of the country will receive more water, and certain part of the country does not receive sufficient water. है ना, हम बहुत बार देखते हैं कि कहीं तो भी एक आधा पार्ट रहता है कि जहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, और कहीं तो भी हमारे नॉर्थ ईस्ट स्पेसिफिकली जो पार्ट है, जैसे आसाम है, बंगाल है, और ऊपर में गए तो अरुणाचल प्रदेश है, या नॉर्दर्न पार्ट है जैसे उत्तर प्रदेश है, या उत्तरांचल है, जम्मू एंड कश्मीर है। तो यहाँ पे क्या होता है, हिमालय के पास में है तो बहुत सारी बारिश होती है और फ्लड्स आ जाते हैं। और हमारे जो सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री है, जिसमें आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र का मराठवाड़ा पार्ट है, या और बहुत सारे नीचे में तमिलनाडु है, तो यहाँ पे बारिश कम होती है। तो इसलिए यदि वी कंजर्व, प्रिजर्व और स्टोर द वाटर in the part where the rainfall is excess, and use that water in the part where there is not good rainfall, that can be achieved with the help of the irrigation engineering. Third part is growing number and variety of crops. आपके पास में यदि नॉन रेनफॉल पीरियड में, if you have the water stored in your reservoirs with the help of the dams, with the help of the irrigation engineering, then you can grow various types of the crops, कैश क्रॉप जिसको बोलते हैं, and that will help in gaining the money to the farmers and overall development of the economy of the country. तो ये फायदा है इरिगेशन का कि ग्रोइंग नंबर एंड वेराइटी ऑफ क्रॉप। जैसे फॉर एग्जांपल बोलते हैं यहाँ पर कि जैसे महाराष्ट्र में है कि यहाँ पे ओवरऑल जिसको अभी आगे हम पढ़ने वाले खरीफ और रबी करके बोलते हैं, कि खरीफ क्रॉप्स यानी बरसात में होने वाले क्रॉप्स, और रबी क्रॉप्स यानी जो बरसात के बाद में क्रॉप्स होते हैं, जो खेती होती है, उसको रबी क्रॉप्स करके बोलते हैं। तो वहां पे हम जनरली क्या लेते हैं, ज्वारी लेते हैं, जवार जिसको बोलते हैं, सोयाबीन लेते हैं, कहीं कॉटन लेते हैं, कहीं तुअर लेते हैं, कहीं गेहूं लेते हैं, राइस लेते हैं। तो यदि हमारे पास में सफिशिएंट वाटर है इन द रिजर्वायर्स, तो इसके अलावा यानी इसके साथ में या इसके अलावा हम शुगर केन ले सकते हैं, है ना, गन्ना ले सकते हैं। हमारे बहुत सारे पार्ट में ये होता है अंगूर जिसको बोलते हैं, ग्रेप्स, बहुत सारे पार्ट में पोमग्रेनेट होते हैं। various types of the fruits and various types of the different crops which will give more cash, है ना। बहुत सारे एरियाज में आजकल उन्होंने लीची लेना चालू कर दिया है, और वेरियस क्रॉप्स, वेरियस टाइप्स ऑफ द वेजिटेबल्स, है ना। सब्जियां अभी तो पूरे 12 महीने लगती है, बहुत सारे बड़े शहरों में लगती है सभी। तो आई मीन टू से विद द हेल्प ऑफ द इरिगेशन, द नेसेसिटी ऑफ इरिगेशन इज फॉर ग्रोइंग नंबर एंड वेराइटी ऑफ क्रॉप्स। कंट्रोल्ड वाटर सप्लाई, यानी जितना पानी चाहिए उतना ही हम खेतों को दे सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द इरिगेशन, नॉट एक्सेस नॉट लेस। ग्रोइंग पेरेनियल क्रॉप्स, अभी क्या होता है जब व्हेन वी आर डिपेंडेंट ऑन द नेचर, मींस इन द रेनी सीजन वी कैन टेक, एंड ऑल्सो इफ सम soil is wet due to the rains etc., then in winter we can take the crops like the gehu etc. But with the help of the irrigation we can take the crops for the 12 months, 12 महीने हम खेती कर सकते हैं, उसे 12 ग्रोइंग पेरेनियल क्रॉप्स करके बोलेंगे। कमर्शियल क्रॉप्स रिक्वायरिंग मोर वाटर, जो क्रॉप के लिए में पैसा बहुत मिल सकता है उसे कमर्शियल क्रॉप बोलेंगे। तो हमने देखा नेसेसिटी ऑफ इरिगेशन,
इम्पोर्टेंस ऑफ इरिगेशन और अभी उसी लाइन में बेनिफिट्स ऑफ इरिगेशन, यानी इम्पोर्टेंस, नेसेसिटी एंड बेनिफिट्स भले ही एक सरीके लगते हैं लेकिन थोड़ा थोड़ा उसमें बॉर्डर लाइन है, और इट्स आल्सो आस्क्ड इन नंबर ऑफ टाइम्स इन योर एग्जाम. नाउ द बेनिफिट्स, again in short we will discuss. First is increase in crop yield, increase in food production. हमारे देश में आज फूड प्रोडक्शन कुछ साल पहले, यानी 30-40 साल पहले, वी हैव टू ब्रिंग द क्रॉप्स, द राइस, द ज्वार, देन द गेहूं, दाल. अभी भी हमें कुछ ऑयल बाहर से मंगाना पड़ता है, ईटिंग ऑयल, ईडेबल ऑयल जिसको बोलते हैं. तो पहले तो ये बहुत सारे फूड्स के लिए हमें बाहरी कंट्री के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता था, लेकिन आज हम खाने के क्षेत्र में, फूड्स के क्षेत्र में स्वयं पूर्ण हो गए हैं. ठीक है, तो क्यों हुए हैं? बिकॉज वी हैव एडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन. वी हैव कंस्ट्रक्टेड लॉट ऑफ द डैम्स, we have created lot of the reservoirs, canals, so that we can be self sufficient in food production. So this is achieved with the help of the irrigation. So increase in crop yield, increase in food production. Protection from famine, famine यानी अकाल, दुष्काल, नोटबुक में कहीं तो भी लिख दीजिए. तो यदि हमारे पास में पानी उपलब्ध है, आर्टिफिशियली क्रिएटेड वाटर विद द हेल्प ऑफ द डैम और रिजर्वायर्स, तो हमें कभी जिंदगी में, कभी आने वाले सालों में अकाल का सामना करना नहीं पड़ेगा, दुष्काल का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि पानी हमारे पास में नेक्स्ट ईयर के लिए भी अवेलेबल है. और ऐसा बहुत कम होता है, ऐसा होता ही नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कम ज्यादा ये होता है कि बारिश आती नहीं है, ऐसा कभी नहीं है, क्योंकि हमारा देश ये बारिश के ऊपर डिपेंड है. और बारिश के ऊपर सभी बाकी चीजें डिपेंड है, खेती डिपेंड है, इंडस्ट्री डिपेंड है. बारिश आएगी तो नदी में से पानी बहेगा, धरण बने भरेंगे, तो हमारी सब इकोनॉमी चलती रहेगी. ये सिर्फ हमारा नहीं है, पूरे दुनिया का यही दस्तूर है. तो इसीलिए ऐसा बहुत कम होता है कि एक आधे बार बारिश आती ही नहीं है, कम आती है लेकिन आती जरूर है. और विद द हेल्प ऑफ द इरिगेशन वी कैन यूटिलाइज दैट लेस रेनफॉल आल्सो. तो अकाल जो है, फैमिन, ये हम विद द हेल्प ऑफ द इरिगेशन वी कैन प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम द फैमिन. ओके, द नेक्स्ट बेनिफिट इज कल्टीवेशन ऑफ सुपीरियर और कैश क्रॉप्स. ये मैंने आपको समझा ही दिया है. एलिमिनेशन ऑफ मिक्स्ड क्रॉपिंग है ना. अभी हमारे महाराष्ट्र में हम ऐसा करते हैं कि हम सोयाबीन लगाते हैं, हम कपास भी लगाते हैं, हम उसमें तुअर दाल भी लगाते हैं, और कुछ छोटे मोटे ये मिर्ची विर्ची इसके बीच में हम चिलीज वगैरह लगा लेते हैं. वो एक साथ करते हैं, जिसको हम खरीफ क्रॉप में लेंगे, बरसात में जो क्रॉप्स लेते हैं उसको मिक्स क्रॉपिंग करके बोलते हैं. ये क्यों करते हैं? क्योंकि वो इसलिए करते हैं कि एक आधे बार ज्यादा वर्षा के कारण यदि सोयाबीन हमारा डैमेज हो जाता है, या कम वर्षा के कारण हमारा कॉटन डैमेज होता है, तो कोई ना कोई तो भी क्रॉप हमारा हमें बेनिफिट दे, हमें कुछ पैसा दे, उसको मिक्स क्रॉपिंग करके बोलते हैं. लेकिन हमारे पास में गारंटीड अवेलेबल वाटर सोर्स है इन द फॉर्म ऑफ द इरिगेशन, देन वी कैन अवॉइड दिस मिक्स क्रॉपिंग एंड वी कैन गो फॉर ए सिंगल क्रॉप. राइस है तो हम सिर्फ राइस के लिए जाएंगे, कॉटन है तो सिर्फ कॉटन ही उतने खेत में प्रोड्यूस करेंगे, सोयाबीन है तो सिर्फ सोयाबीन. यानी हमारे पास में पानी है, इधर एक आध महीना 15 दिन बारिश नहीं भी हुई तो कैनाल से हम पानी दे सकते हैं. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज द एलिमिनेशन ऑफ द मिक्स क्रॉपिंग. और ये सब यदि हम अचीव करते हैं तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इंक्रीज इन प्रॉस्पेरिटी ऑफ द पीपल, देश की जो जनता है, यानी देश का ही, हमारे पूरे इंडिया की प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ेगा, है ना. हमको सबको मालूम है, यदि अच्छा इरिगेशन जिस पार्ट में, जैसे हमारे बहुत सारे देश के कुछ भाग है, जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार का कुछ पार्ट, बंगाल का कुछ पार्ट, है ना. महाराष्ट्र में भी पश्चिम महाराष्ट्र जो है, जहाँ पे पुणे आता है, सांगली, सातारा, कोल्हापुर,
तो यहाँ पे इरिगेशन बहुत अच्छा है। यहाँ पे खेतों को पानी देने के लिए जो भी उपलब्ध नदियां है उसके ऊपर डैम्स है, कैनाल्स है। तो यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत अच्छी है एज कंपेयर टू सम पार्ट ऑफ द विदर्भ जहाँ पे हम रहते हैं। मराठवाड़ा तो बहुत ही कम, क्योंकि बारिश बहुत कम होती है उधर, तो वहां पे नदियों में पानी नहीं रहता। फिर भी कहीं तो भी फिर अभी गोदावरी नदी पे डैम वगैरह कंस्ट्रक्ट करके अवेलेबल करते हैं पानी। So you can see the difference because some of our students live in different parts of the countries as well as some live in different part of the Maharashtra और विदर्भ। विदर्भ में कोई भंडारा में रहता है, कोई गोंदिया में रहता है, चंद्रपुर है, तो कोई यवतमाल में रहता है, कोई उधर नांदेड़ या औरंगाबाद की तरफ रहता है। तो उसके ध्यान में आएगा कि हर भाग पार्ट का डेवलपमेंट कैसा अलग अलग है। So that development is totally dependent on the irrigation. So economic development and increase in prosperity of the people. Hydropower generation, as I have told, the secondary but very important use of irrigation engineering is hydropower generation, है ना, जल विद्युत योजना जिसको बोलते हैं। तो ये हम कर सकते हैं, है ना, हाइड्रो पावर जनरेशन। एज सम ऑफ आवर फ्रेंड्स आर फ्रॉम द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, hilly area, the water is available for the 12 months, so they experience the generation of hydropower in their state, है ना। हमारे यहाँ हमारे कुछ मित्र, कुछ उत्तर प्रदेश से है, तो कोई जम्मू एंड कश्मीर से, 12 महीने बारिश, 12 महीने पानी रहता है, हिमालय है पास में, तो वहां पे वो हाइड्रो पावर जनरेशन का इस्तेमाल देख सकते हैं। यदि हम डैम्स या रिजर्वायर क्रिएट करते हैं तो उसके कारण हम डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वाटर सप्लाई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि गांवों को, डोमेस्टिक यानी हमारे जो गांव है, शहर है, बड़े बड़े सिटीज है, तो इसको भी पीने का पानी हम दे सकते हैं, देते ही है। अभी पीने के पानी के लिए, इरिगेशन के लिए जो डैम कंस्ट्रक्ट करते हैं उसमें कई पानी वापरते हैं। जैसे नागपुर में है तो वो पेंच प्रोजेक्ट है नवेगांव कैरी में, तो वो पेंच प्रोजेक्ट एक्चुअली इरिगेशन के लिए कंस्ट्रक्टेड है, बट द वाटर इज यूज्ड फॉर द ड्रिंकिंग पर्पज ऑफ नागपुर सिटी। सो डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल वाटर सप्लाई, बूटी बुरी हमारी जैसे MIDC है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन बूटी बुरी सुपर 5 स्टार, तो इसको रामा डैम से पानी आता है ना। वडगांव करके धरण है, वो धरण से इंडस्ट्री को पानी आता है। तो ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्री को गारंटीड वाटर सप्लाई, क्योंकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कैन ओनली हैपन in 2 cases. The first and the foremost is the guaranteed water supply and the second is guaranteed electrical supply. बाकी तो उसको लैंड वगैरह सब मिल जाती है, ठीक है। तो इंडस्ट्री, इनलैंड नेविगेशन नया वर्ड है, लेकिन आपको मालूम ही होगा कि बड़े बड़े जो नहर रहते हैं, बहुत बड़े बड़े नहर जो रहते हैं, जैसे भाकरा नानगल के नहर है कहीं नॉर्दर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री, या गोसेखुर्द कैनाल है बड़ा, तो उसमें से हम आवक जावक भी कर सकते हैं, नेविगेशन यानी ट्रैफिक कर सकते हैं, है ना। आपको सुवेज कैनाल मालूम होगा, वो अभी वो सुवेज कैनाल में एक नौका फंस गई थी, तो वो दैट इज वेरी गुड एग्जांपल ऑफ द इनलैंड नेविगेशन, है ना। आपको नहीं मालूम तो आप नेट पे पढ़िए, सुवेज कैनाल, पनामा कैनाल एक्सेट्रा। देन द कैनाल प्लांटेशंस, यानी हम कैनाल बनाते हैं तो उसके आजू बाजू भरपूर झाड़ लगाते हैं, कैनाल प्लांटेशन। और प्लांटेशन किया तो क्या यूजेस है, सब ग्रीन हाउस गैसेस एक्सेट्रा, ऑल दोज आर रिड्यूस्ड। इंप्रूवमेंट इन ग्राउंड वाटर स्टोरेज, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यदि हम डैम बनाते हैं, रिजर्वायर बनाते हैं, कैनाल से पानी बहता है, तो नेचुरली वो पानी जमीन में परकोलेट होता है और ग्राउंड वाटर की अवेलेबिलिटी बढ़ती है ना। आप सबने पढ़ा है ग्राउंड वाटर अवेलेबल इन एक्वीफर्स, कन्फाइंड एंड अनकन्फाइंड एक्वीफर्स। तो यदि ये अदर देन रेनफॉल, all this water which is stored for the purpose of irrigation again percolates into the ground, okay, permeates into the ground, infiltrates into the ground, into the soil, and the groundwater storage improves, aid in civilization,
हमारी बहुत सारी संस्कृतियां जो है, जो हमारे गांव है, जैसे मोहनजोदारो हड़प्पा से लेके तो हमारी सिंधु संस्कृति, तो ये सब नदी के किनारे डेवलप हुई है, क्योंकि पानी के सिवाय और कोई ह्यूमन डेवलपमेंट हो ही नहीं सकती. सो एड इन सिविलाइजेशन एंड ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. ठीक है, ये अभी हमने देखा थोड़ा सा फास्ट में. अभी हम आगे में जाते हैं. फायदे के साथ में कुछ इससे कुछ दो तीन मामूली नुकसान है. वो है ब्रीडिंग प्लेसेस ऑफ मॉस्किटो, दैट दे आर कॉल्ड एज द इल इफेक्ट्स ऑफ इरिगेशन. समटाइम्स द बेनिफिट्स as well as ill effects of irrigation are asked in exam. So benefits we have discussed earlier. We have seen importance of irrigation. We have seen necessity of irrigation. Now we will be seeing the ill effects of irrigation. The first is breeding places for mosquitoes. That is the mosquitoes और जो मच्छर जो रहते हैं, वो मच्छर ये जो डैम बनते हैं, इसका जो पानी स्टोर होता है, तो वो पानी स्टोर होने के कारण मच्छर बढ़ते हैं. तो उसके कारण जो भी डिसीजेस हो सकते हैं, मलेरिया है, फाइलेरिया है, डेंगू है, ये हो सकते हैं. उसको आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा. ठीक है, तो ब्रीडिंग प्लेसेस फॉर मॉस्किटोज. सेकंड इज वाटर लॉगिंग. इरिगेशन बहुत ज्यादा होने के बाद में, जैसे अभी अपन ने पढ़ा कि वाटर जमीन के अंदर इनफिल्ट्रेट होता है, परमिएट होता है, परकोलेट होता है, तो उसके कारण वाटर टेबल ऊपर ऊपर जाता है, नीचे नीचे, और नीचे से ऊपर में बढ़ते जाता है, ऊपर जाता है. और जैसे ऊपर जाते जाते वो ग्राउंड सरफेस के पास में आता है. ऊपर में जो ग्राउंड सरफेस है, जमीन की लेवल है, उसके पास में जब वाटर टेबल ऊपर जाते जाते आता है, तो वो पूरे कैपिलरीज पानी से भर जाते हैं. और उसके कारण जो क्रॉप का जो रूट जोन रहता है, अभी हम आगे में और रूट जोन समझेंगे, लेकिन क्रॉप के जो रूट्स रहते हैं, वो क्रॉप के रूट्स भी पानी में, ये जो वाटर वो टेबल ऊपर आने के कारण पानी में वो रहते हैं मैक्सिमम पीरियड. और रूट्स जो है, रूट्स यदि उसको, ठीक है, क्रॉप डेवलपमेंट के लिए पानी की जरूरी है, लेकिन यदि ज्यादा से ज्यादा समय वो रूट्स पानी में यदि रहते हैं, तो वो प्लांट धीरे धीरे विल्ट होता है, मरते जाता है. तो इसलिए वाटर लॉगिंग होना अच्छी बात नहीं है. उसके साथ में ये वाटर लॉगिंग एफ्लोरेंसेस भी क्लियर क्रिएट करता है, यानी सॉल्ट लाता है जमीन में, वो भी हमें नहीं चाहिए. तो इसलिए ये वाटर लॉगिंग इज द इल इफेक्ट ऑफ द इरिगेशन, इज वन ऑफ द प्रॉब्लम. सो मॉस्किटोज का ब्रीडिंग प्लेसेस, वाटर लॉगिंग, and as the huge reservoirs are created, dams are created, water is stored and it creates a damp climate. थोड़ा जिसको आर्द्र हवामान जिसको बोलते हैं, डैम्प क्लाइमेट होता है. और वो डैम्पर के कारण वो एरिया कोल्ड भी होता है. तो उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस टू द ह्यूमन हेल्थ दैट हैपेंस. ओके, चलो अभी हम नेक्स्ट पार्ट में जाते हैं. थोड़ा टाइप्स ऑफ इरिगेशन ये पढ़ते हैं, और उसके बाद में हम दो डिफरेंसेस अभी मैं आपको बता देता हूं. पहला है टाइप्स ऑफ इरिगेशन, और उसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं मेथड्स ऑफ इरिगेशन. you must have the very clear boundary between the types of irrigation and methods of irrigation. Okay, because in exam they ask what are the various types of irrigation and what are the various methods. टाइप्स ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन यानी क्या, सबको समझ गया है अभी. आर्टिफिशियल सप्लाई ऑफ द वाटर टू द प्लांट्स इज इरिगेशन. नाउ फॉर द पर्पस ऑफ इरिगेशन or for supplying the water to the agriculture, to the plants, we have to make that water available for the plants, either by flowing the water into the agriculture, or by, if that water is flown through the river,
or through the dam by gravity. That is one of the type of irrigation, that is the flow irrigation. Okay, when the water is flown directly through the river by construction of the barrages. जैसे हमारे नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में 12 महीने नदी बहती है, तो हम छोटे छोटे एकदम नदी में छोटे डैम्स कंस्ट्रक्ट करते हैं, जिसको बैरेजेस करके बोलते हैं, और उसमें का पानी डाइवर्ट करते हैं खेतों में। या हम दूसरा ये भी कर सकते हैं कि जैसे हमारे कुछ पार्ट ऑफ द कंट्री, इंस्टेड ऑफ द स्मॉल बैरेजेस वी कंस्ट्रक्ट द ह्यूज डैम्स, यानी नदी के बैंक्स जो है उसके भी बाहर वो वॉल्स आइदर कंक्रीट की या सॉइल की, माटी की, वो नदी के बैंक के बाहर भी जाती है, तो उसे हम डैम्स या डैम्स ही कहते हैं, बड़े डैम्स कहते हैं, और छोटे डैम को बैरेजेस कहते हैं। आगे में हम पढ़ते जाने वाले, तो उसको बोलते हैं फ्लो इरिगेशन। ठीक है, फ्लो इरिगेशन। So there are mainly two types of irrigation. First is flow irrigation, and when the water cannot be flown with the help of the gravity, gravity यानी with the help of the using the slope of the ground, जैसे कैनाल से हम पानी ले जाते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है कि जहां पे पानी अवेलेबल है वहां से पानी पंप से लिफ्ट करके हायर लेवल पे ले जाना पड़ता है। एक आधे जमीन के हाई, जैसे लोअर लेवल पे पानी अवेलेबल है तो यहाँ से लिफ्ट करके हायर लेवल पे ले जाते हैं विद द हेल्प ऑफ द पंप्स एंड द पाइप्स, और हायर लेवल से दैट वाटर इज अगेन supplied to the farms, to the agriculture with the help of the flow irrigation. This is called as the lift irrigation, means lifting the water from lower level to higher level with the help of the electrical pumps and the pipelines. And then again from the higher level, the water is supplied with the help of the gravity to the lower level agricultural farms. So there are mainly two types of irrigation. One is flow irrigation and another is lift irrigation. Okay, now this flow you are noting down in your notebook. It has also given in your notes in detail, but as we are discussing here, I request you all to please note down in your notebooks, short में लिखते जाइए कि types of irrigation. So flow irrigation, lift irrigation. अभी ये फ्लो इरिगेशन जो है ये भी और दो टाइप में है, पेरेनियल इरिगेशन एंड द सेकंड इज इनंडेशन इरिगेशन। ठीक है, हम और पढ़ते जाते हैं, आगे में अच्छे से समझते जाते हैं। आप सिर्फ नोटबुक में लिखिए, ऊपर में लिखिए टाइप्स ऑफ इरिगेशन। देयर आर टू टाइप्स, द फर्स्ट इज फ्लो इरिगेशन, अनदर इज लिफ्ट। दिस फ्लो इरिगेशन इज अगेन सब डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। वन इज पेरेनियल इरिगेशन, पेरेनियल यानी 12 महीने हम पानी दे सकते हैं, और दूसरा है इनंडेशन इरिगेशन, यानी अगेन ए टाइप ऑफ इरिगेशन। इनंडेट करना यानी वो जमीन को पानी में डुबो के रखना, इनंडेट करना, तो इनंडेशन इरिगेशन। ये हम डायरेक्ट जब एखादा बैरेज कंस्ट्रक्ट करके जब कैनाल से पानी खेतों में देते हैं, तो हम डायरेक्ट नदी का पानी डायरेक्ट हम खेतों में छोड़ देते हैं, उसे इनंडेशन इरिगेशन। या एखादे बार फ्लड का पानी हम डाइवर्ट कर देते हैं खेतों में, उसे इनंडेशन इरिगेशन करके कहते हैं। और डिटेल में हम आगे में पढ़ने वाले हैं, सिर्फ यहाँ पे हमें नोट डाउन करना है। सो टाइप्स ऑफ इरिगेशन, फ्लो एंड इरिगेशन, लिफ्ट इरिगेशन। फ्लो इरिगेशन is divided into perennial and inundation. The another classification of flow irrigation is direct irrigation. You are noting down direct irrigation, storage irrigation, and the third is combination of the storage and direct irrigation. Okay, so direct irrigation, this is also called as the diversion irrigation. Direct irrigation, diversion. Second is storage irrigation, and the third is combination of the storage and the direct or the diversion irrigation. Okay, so these are the main types. We will be discussing one by one. We will try to understand one by one in our slides to come.
Okay. Now, first we will try to understand the direct, the diversion, and the combination of the direct and the diversion. And after, in our next lecture to come, we will be discussing about the perennial and inundation and the remaining part and the methods and the drip and the sprinkler irrigation. Then our first part of our discussion ends. Then we will move on to the next part, that is the crop water requirement. Very important. This is also important. So flow irrigation we have understood, wherein the water supply of irrigation water is available at such a level that it is conveyed on the land by gravity flow. So in the flow irrigation, we have the water available at the source of water, that is in the dams or the reservoir, at such a ground level, यानी वहां पे पानी जो उपलब्ध है, वहां की जो ग्राउंड लेवल है वो ऊपर में है। किसके ऊपर में है? जहां पे पानी की जरूरत है, यानी खेतों से डैम की लेवल ऊपर में है, ताकि वी कैन कन्वे द वाटर फ्रॉम दिस रिजर्वायर्स टू द फार्म, टू द एग्रीकल्चर, टू द खेत, with the help of slope of the ground. That is, we can flow the water with the help of the gravity. Such type of irrigation is called as the flow irrigation. Okay. This flow irrigation I have defined, and I tried to explain you what is flow irrigation, why it is called as the flow irrigation, and what is the difference between the flow and the lift irrigation. In the flow irrigation, water is stored at the higher level as compared to the water required land, that is the agricultural farm or the crops where the land is available. It is at the lower level. So therefore you all know the water always flows from higher level to lower level with the help of the gravitational force. Therefore such flow is called as the gravity flow. है ना? आप फ्लूइड मैकेनिक्स में ओपन चैनल फ्लो वगैरह पढ़े हैं, दैट इज द ग्रेविटी फ्लो. And the water flowing through the pipes is called as the pressure flow. है ना? You must have learnt in your fluid mechanics or hydraulics. So the difference. Now this flow irrigation is further divided into the direct irrigation and the lift irrigation. Direct irrigation is nothing but the irrigation water is obtained directly from the river without any intermediate storage. ठीक है. डायरेक्ट इरिगेशन और स्टोरेज इरिगेशन, ये दोनों हम पढ़ने वाले हैं. और स्टोरेज में फिर से डाइवर्शन, स्टोरेज एंड कॉम्बिनेशन ऑफ डाइवर्शन एंड द स्टोरेज ऐसा पढ़ना है. ठीक है. तो डायरेक्ट इरिगेशन यानी क्या? Direct irrigation is the irrigation, that is the artificial supply of water to the crop, wherein the water from the river is directly diverted into the farm, into the agricultural land without any intermediate storage. यानी बीच में कोई डैम या कोई रिजर्वायर कंस्ट्रक्ट ना करते हुए. ये कब पॉसिबल है? when it is possible, when that river is flowing perennially. जो नदी 12 महीने पानी जिसमें बहता है, ऐसी नदियां कहां पे है 12 महीने पानी बहने वाली? नॉर्दर्न स्टेट में. हमारे जो उत्तर भारत है, क्योंकि हिमालय से सब निकलती है, तो 12 महीने उसमें से पानी बहते रहता है. बरसात का पानी आता है और बाकी धूपकाले में जो बर्फ है उसका पिघलने का पानी आता है. हमारे सदर्न स्टेट में कुछ रिवर है क्या ऐसी 12 महीने बहने वाली? जैसे हमारी वैनगंगा रिवर है, गोदावरी है, बड़ी बड़ी जो रिवर्स है, दे आर कॉल्ड एज द पेरेनियल रिवर्स. सो व्हाट इज डायरेक्ट इरिगेशन? wherein the irrigation water is obtained directly from river without any intermediate storage, and it is possible by constructing the weir or the barrage. ये मैंने आपको बोला था, weir or the barrage is just a small obstruction. It is within the banks of the river. नदी के सिर्फ दोनों किनारों के बीच में, बैंक के बाहर गया तो वो बड़ा डैम हो गया, उसको डैम बोलेंगे.
लेकिन दोनों किनारे जो है बैरेजेस जो रहते हैं, ये दोनों बैंक्स के बीच में एक छोटा सा दीवार बांधते हैं, ये छोटे छोटे गेट्स डालते हैं उसमें, दे आर कॉल्ड एज द बैरेजेस। वो सिर्फ इसलिए रहते हैं कि नदी का पानी रोका जाए और उसको कैनाल के माध्यम से खेतों में डायरेक्ट डाइवर्ट किया जाए। ये आपको नॉर्दर्न इंडिया में बहुत सारे दिखेंगे, है ना। सो इज पॉसिबल बाय कंस्ट्रक्टिंग द वियर और द बैरेज अक्रॉस द रिवर to raise the level of the water level of the river water, and thus divert some portion of the river flow through an adjacent canal where the flow takes place by gravity। फिर यहाँ से आगे में ये जो पानी है नदी में का, जिसको हमने क्या बोला कि डायरेक्ट इरिगेशन करके बोला, है ना। डायरेक्टली हम वी सप्लाई द वाटर आर्टिफिशियली टू द प्लांट टू द एग्रीकल्चरल फील्ड just by obstructing with the help of the barrage or with the help of the weir और बैरेज, दो नए वर्ड आ गए, WEIR, weir and barrage। weir is a small bund within the banks of the river and barrage is also a small bund but it has some gates। and the another type of the direct irrigation is reservoir ऑब्लिक्स टैंक और स्टोरेज इरिगेशन, यानी ये सेकंड पार्ट। यानी यदि नदी 12 महीने बहने वाली नहीं है, पेरेनियल नहीं है, तो उसमें बरसात में जो पानी बहता है, बरसात में जो बरसात के कारण पानी आता है, तो उसमें ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करना, वॉल क्रिएट करना, और द वॉल मे बी विद द हेल्प ऑफ द कंक्रीट, मैसनरी और अर्दन सॉइल, उसको डैम करके कहते हैं। और ये जनरली नहीं, 100% they are of such a huge length and height that they are outside the banks of the river। नदी का जो पात्र रहता है उससे भी बड़े रहते हैं, तो उसको डैम करके कहते हैं। तो ये डैम से भी हम पानी स्टोर करते हैं पहले, और जब पानी की उपलब्धता आवश्यकता हो तब वो पानी सप्लाई करते हैं। So this ensures that even when there is no inflow into the river, means other than the rainy season, from the catchment there is enough stored water which can continue to irrigate fields through the system of canals। So this is all what we learned about the first type of the irrigation, that is the flow irrigation, inflow irrigation। there are again subdivided into the direct, है ना, फ्लो इरिगेशन, फ्लो में डायरेक्ट, स्टोरेज, और अभी नेक्स्ट जो है कॉम्बिनेशन ऑफ स्टोरेज एंड डाइवर्शन। दिस पार्ट वी आर लर्निंग, फ्लो इरिगेशन, डायरेक्ट इरिगेशन, स्टोरेज इरिगेशन, combination of storage and diversion। okay, so direct and the storage, and the second part which is the lift irrigation, when the irrigation water is available at the lower level, then the land which is irrigated, then the water is lifted by the pumps from the lower level where it is available, either pumps or by mechanical devices, and then it is stored at the higher level, or it is directly given to the agricultural lands through canals flowing under gravity, है ना। इसका बहुत सिंपल एग्जांपल है, हमारे खेतों में हम जब कुएं से पंप से पानी निकालते हैं, है ना, मोटर पंप रहता है, आइदर इलेक्ट्रिक पे चलने वाला नहीं तो डीजल पे चलने वाला। इट इज ए एग्जांपल ऑफ लिफ्ट इरिगेशन, वेयर इन व्हाट वी डू, we lift the water from the well, either the open well or the bore well, and then we supply the water under gravity। खेत में पानी हम फिर छोटे छोटे जो कैनाल रहते हैं या चैनल रहते हैं, नालियां रहती है, उसके माध्यम से खेतों में हम पानी देते हैं। इट इज द एग्जांपल ऑफ द लिफ्ट इरिगेशन। लेकिन जो बड़ी बड़ी लिफ्ट इरिगेशन स्कीम्स है, जैसे हमारे नागपुर के पास में अंबोरा लिफ्ट इरिगेशन है, कहीं तो भी भंडारा के पास में है, और बहुत सारी गोसेखुर्द प्रोजेक्ट में लिफ्ट इरिगेशन है, और भी काफी जगह पे लिफ्ट इरिगेशन स्कीम्स है। तो वहां पे क्या करते हैं, 700-800 हॉर्स पावर के पंप रहते हैं, बहुत बड़े बड़े पंप रहते हैं। तो वो लोअर लेवल से पानी उठाते हैं पंप के माध्यम से, 5 पंप, 10 पंप, 15 पंप, बहुत बिग पंप्स आर देयर।
those lift the water from the lower level, they bring the water at the higher level, and the water is stored at the higher level, maybe in the ponds, maybe in the small dams, and then from those stored water, that water is again conveyed to the irrigation land under gravity by flow. Okay? So that is lift irrigation. Now again, the classification we have discussed earlier. Just I will take 2-3 minutes more, and then we will just 2-3 slides more, because we have started at 11:10. It's 12:10. The next classification on the basis of duration of applied water is the inundation. हमने डिस्कस किया ही है ये, or flooding type system, wherein large quantities of water flowing in river during floods is allowed to inundate. Inundate यानी हमारे हिंदी में उसको डुबोना करके बोलते हैं. पानी से, पानी पूरा वो, या खेत को पानी से डुबोना, या खेत में पानी छोड़ना, is allowed to inundate the land to be cultivated, thereby saturating the soil. यानी फ्लड का जो पानी है, फ्लड का पानी डायरेक्ट हम कुछ माध्यम से, कुछ ऑब्स्ट्रक्शन से, कुछ बैरेजेस से, कुछ बंधारे से, बंधारा भी बोलते हैं छोटे बैरेजेस को, तो वो बंधारे से वो फ्लड वाटर डाइवर्ट करेंगे खेतों में, और फिर जमीन गीली हो गई कि उसके उसमें बाद में इरिगेशन करेंगे, एंड द एक्सेस वाटर इज ड्रेन्ड ऑफ, एंड द लैंड इज यूज्ड फॉर द कल्टीवेशन. ज्यादा का पानी छोड़ देंगे और जमीन फिर खेतों के लिए यूज करेंगे. दिस टाइप ऑफ इरिगेशन यूजेस फ्लड वाटर ऑफ रिवर्स एंड देयरफॉर इज लिमिटेड टू सर्टेन टाइम ऑफ रिवर. इसलिए तो ये ड्यूरेशन ऑफ अप्लाइड वाटर करके बोला है इनंडेशन. तो जब फ्लड्स आते हैं, जब नदी में से पानी बहता है, तभी ये पानी हम खेतों में यूज करेंगे. तो इसलिए ये सर्टेन टाइम ऑफ द ईयर में ही होगा, बरसात में ही होगा, 12 महीने नहीं होगा. इट इज ऑल्सो कॉमन इन एरियाज नियर रिवर डेल्टास, है ना. रिवर डेल्टा यानी जहाँ पे नदी समंदर को मिलती है, तो वो जो डेल्टा पार्ट है ना, जैसे कलकत्ता के पास में गंगा नदी समंदर को मिलती है बे ऑफ बंगाल में, तो वहां पे बहुत बड़े बड़े डेल्टास फॉर्म हुए हैं, where the slope of the river and land is small, and therefore the water is available for the flood irrigation. And the second type and the last in today's our discussion is perennial irrigation system. यानी जब हम 12 ही महीने पानी खेतों को दे सकते हैं. कैसे दे सकते हैं भाई? बस by the construction of the dams, by creating the reservoir. So irrigation पहले इसमें कैसा है, जब फ्लड्स है तभी दे सकते हैं, लेकिन पेरेनियल में हम 12 महीने दे सकते हैं. और कब पॉसिबल है? जब बरसात में पानी स्टोर करेंगे, और जब चाहिए, जब नॉन रेनी सीजन पीरियड है या रबी पीरियड है, तो तब हम वो डैम से पानी सप्लाई करेंगे. सो इरिगेशन वाटर इज सप्लाइड अकॉर्डिंग टू द क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट at regular intervals throughout the life cycle of the crop. The water for such irrigation may be obtained from rivers or from wells, some storage headworks, dams, storage weirs or barrages, and wherein the water is stored, excess water during floods, and released when it is required. Hence the source may be either surface or groundwater, and the application of water may be flow or lift irrigation इन दिस पेरेनियल सिस्टम. यहाँ पे हम अभी ब्रेक लेते हैं. ठीक है, आगे का जो है कल भी फिर से थोड़ा सा रिवीजन करते हुए वी विल डिस्कस द रिमेनिंग पार्ट इन आवर टुमारोज लेक्चर.